شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: نئے سال کی آمد پر وادی کے بعض پہاڑی سلسلوں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور برفباری کی امید، شبانہ درجہ حرارت میں چند روز سے رونما ہوئی ہے بہتری، محکمہ موسمیات۔ ریزرویشن معاملے پر سیاست تیز، حکومتی نمائندوں نے بھی گزشتہ روز نوجوانوں کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کی تنقید کی۔ ہائی ڈینسٹی اسکیم کی عمل آوری میں بعض نقص دور کرنے کی ضرورت ہے، کسان۔ سال 2025 اور قومی شاہراہ ایک جائزہ اور غیر قانونی غیر سائنسی کانکنی ایک سنگین مسئلہ، حکومت کو دوررس اقدامات کی ضرورت، سول سوسائٹی۔ اور بھی موضوعات ہیں آج کی شہربین میں ایک وقت کے بعد۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا، 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ خائبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خائبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ کیا آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی بھی ان ریگولیٹڈ ڈپازٹ اسکیم کا شکار ہو جائیں تو بڈز ایکٹ کے تحت آپ کو ترنت کمپلینٹ فائل کرنی چاہیے۔ بڈز ایکٹ یہ کیا ہے؟ بڈز ایکٹ یعنی بیننگ آف ان ریگولیٹڈ ڈپازٹ اسکیمز ایکٹ 2019 کے تحت اگر کوئی آپ کو لیگل ڈپازٹ اسکیمز میں پھنساتا ہے تو آپ کو اپنے پیسے کی سرکشا کے لیے 1930 پر رپورٹ کرنا ہوگا۔ مطلب اگر کوئی فراڈ ہو تو بنا دیری کے رپورٹ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیسہ انلیگل اسکیم میں گیا ہے تو بڈز ایکٹ کے تحت آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ ساودھان رہیں کیونکہ سمجھداری ہی سرکشا ہے۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا، 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ خائبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خائبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ سوچئے، پورا سال محنت، صبح سے شام تک کھیتوں میں کام، اور ایک آندھی، ایک تیز بارش سال بھر کی محنت برباد کر دے۔ میں امن ہوں، یہ ڈر مجھے بھی ستاتا تھا، لیکن اب پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا ہے نا، فصل بیمہ کراؤ، حفاظتی ڈھال بناؤ، اگر نقصان ہوتا ہے تو بیمہ کمپنی میرا ساتھ دیتی ہے۔ اس سیزن گیہوں اور سرسوں کی فصل پر صرف 1.5% کا پریمیم دینا ہے، اسی لیے انتظار مت کیجیے، نزدیکی بینک، CSC یا کرشی دفتر پر جائیے اور 31 دسمبر 2025 سے پہلے اپنا فصل بیمہ ضرور کروائیے۔ زیادہ جانکاری کے لیے 14447 پر کال کیجیے، اپنی فصل کا فیوچر سرکشت بنائیے، فصل بیمہ کراؤ، حفاظتی ڈھال بناؤ۔ یہ سندیش ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر کی طرف سے۔ شیربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.8 میٹر، FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، وادی کشمیر میں گزشتہ چند روز سے شبانہ درجہ حرارت میں بہتری دیکھی جا رہی ہے، جبکہ دن کے دوران مطلع جزوی طور ابر آلود رہتا ہے۔ وادی کے لوگ بارش اور برفباری کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ خشک موسم کے منفی اثرات کے ساتھ ساتھ بجلی اور پانی کی فراہمی اور دستیابی برف بارہ کے ماتحت ہی رہتی ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں مغربی ہواؤں کا ایک اور دور داخل ہو رہا ہے، جس سے شمالی کشمیر کے پہاڑی سلسلوں پر ہلکے سے درمیانہ درجے کی برفباری ہو سکتی ہے، جبکہ جنوبی کشمیر اور وسطی کشمیر میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کے مطابق 31 دسمبر اور 1 جنوری کے درمیان ہلکی برفباری کی گنجائش ہے، جبکہ 2 جنوری کے بعد چند روز تک موسم ابر آلود رہنے کا
इम्कान है। मौसम जो है थोड़ा सा ड्राई रहा है पिछले लगभग एक हफ्ते से, और कमिंग डेज में आज भी थोड़ा सा एक फीबल WD के कारण मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था के कारण जो शबाना दर्जा थे उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। और कमिंग डेज में खासकर कल आफ्टरनून से जो है एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें। और इसका जो एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी खासकर 31 और 1 के बीच में होगा, जिसमें दरमियाना दर्जे की भी बर्फबारी खासकर कुछ एक पहाड़ी इलाके नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के खासकर गांदरबल के पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है देखा जा सकता है। और जो मैदानी इलाके हैं नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के, यहाँ पे हल्की बर्फबारी खासकर 31 देर रात या 1 मॉर्निंग के आसपास जो है हल्की बर्फबारी की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी जो मैदानी इलाके हैं खासकर श्रीनगर या एडजॉइनिंग एरिया, इसी तरह साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे बारिशें ही अमूमन रहेंगी, लेकिन फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग के आसपास थोड़ा सा मिक्स टाइप ऑफ रेन स्नो की पॉसिबिलिटी है। बाकी कोई सिग्निफिकेंट ग्राउंड एक्यूमुलेशन के चांसेस बहुत कम है। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर हल्की बारिशें और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर चिनाब वैली के अंदर यहाँ पे हल्की बर्फबारी की भी पॉसिबिलिटी है। एक आफ्टरनून लेट आफ्टरनून से मौसम खुल जाएगा, 2 तारीख से मौसम पूरी तरह खुलने के चांस हैं और लगभग 12 जनवरी तक कोई ऐसे सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। अलबत्ता खासकर 6 जनवरी के आसपास एक फीबल WD है, इस तरह 9-10 के आसपास भी फीबल WD है, तो हल्की फुल्की बर्फबारी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बाकी मौसम में सच कोई सिग्निफिकेंट या कोई मेजर स्नोफॉल के चांसेस नहीं। देखो विंटर्स कंसेक्यूटिवली लास्ट ईयर भी एक वेट स्पेल हुआ खासकर एंडिंग दिसंबर के आसपास, 27-28 दिसंबर के आसपास, और उससे पहले भी विंटर्स जो है थोड़ा सा ऑलमोस्ट ड्राई निकला। तो उसके कंपैरिजन में कुछ न कुछ बर्फबारी खासकर दिसंबर के महीने में हुई, जो लंबे अरसे से जो ड्राई स्पेल चल रही थी उसको कहीं न कहीं इन बारिशों के कारण जो है वो टूट चुका है। अब कमिंग डेज में देखते हैं, खासकर जनवरी के महीने में फिलहाल फर्स्ट 10 डेज तक तो ऐसे कोई मेजर स्पेल नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो वेल इन टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी रूटीन के हिसाब से वेदर जितना होना चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर, वो नॉर्मल के आसपास ही चल रहा है। बीच बीच में क्लाउडीनेस के कारण दर्जे हरारत में थोड़ा सा इजाफा देखा जा रहा है। अभी 2 तारीख तक तो ऐसे कोई मेजर फॉल के चांसेस नहीं है, थोड़ा सा हायर साइड में रहने के चांसेस हैं। बाकी फ्रॉम 3rd ऑनवर्ड थोड़ा सा दर्जे हरारत में गिरावट देखा जा सकता है अक्रॉस डिफरेंट स्टेशन ऑफ द वैली। तो फिर से ठंड थोड़ा सा बढ़ सकता है। बीच बीच में फीबल WD अप्रोच हो रहे हैं, जैसे 5-6 के दरमियान, इसी तरह 9-10 के आसपास, तो उसकी वजह से टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा देखा जा सकता है, खासकर मिनिमम टेम्परेचर। वादी के पहाड़ों पर अगले चंद रोज में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिश की गुंजाइश बता रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। मुश्ताकदेव ने किश्तवाड़ से खबर दी कि आज अलसुबह हुई बर्फबारी की वजह से सिंतन टाप वाली सड़क गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई, जबकि NHIDCL के इंजीनियर बर्फ हटाने का काम सूरत से जारी रखे हुए हैं। इधर गावरन मरगन टाप वाला रास्ता भी बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। सिंधन टाप पर 8 इंच और वडवन में 2 इंच बर्फ ताजा जमा हुई है। इधर कोकनाग के SDM की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसकी रूह से होने वाली मुतवक्का बर्फबारी और आइंदा दिनों मजीद बर्फबारी की पेशगोई को नजर में रखते हुए ये दोनों रास्ते आमदोरफ्त के लिए गैर महफूज करार दिए गए हैं और बताया गया है कि अगले हुक्मनामे तक ये दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने भी मुमकिन बर्फबारी के पेश नजर एक एडवाइजरी जारी की है और लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। अब एक और मौसूम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में 2025 बैच के IAS अफसरान से मुलाकात की, जो इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में तरबियत हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर LG मौसूफ ने गवर्नेंस और अवामी खिदमत के उसूलों पर रोशनी डाली और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों में होने वाली तब्दीलियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खित्ते में इंतजामी और तरक्याती सतह पर नुमाया पेशरफ्त हुई है, जिसे समझना नए अफसरों के लिए निहायत अहम है। प्रोग्राम के दौरान अफसरान माता वैष्णो देवी, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, बड़ी ब्रह्मना इंडस्ट्रियल एरिया, भारत पाकिस्तान सरहद और जम्मू शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। इस दौरे का मकसद अफसरान को खित्ते के इंतजामी, तरक्याती और सकाफती मंजरनामे से रास्त आगाह करना है, ताकि उनकी पेशावराना तरबियत में इजाफा हो और मुख्तलिफ इंतजामी माहौल में गवर्नेंस के हवाले से हसासियत पैदा हो। अब एक और मौजूद। समीन वादी में हाई डेंसिटी मेवा दरख्तों का चलन गुज़श्ता चंद बरस से काफी आम हो चुका है, जहां लोग इन जदीद किस्म के पौधों को अपने रिवायती बागात में उगा रहे हैं। वहीं बादाम, अखरोट के दरख्त काट कर वहां पर भी यही पौधे लगाए जा रहे हैं।
बाज़ इलाकों में तो ज़री ज़मीन पर भी हाई डेंसिटी बागात लगाने का चलन आम हो चुका है। हाई डेंसिटी पौधे लगाने की बुनियादी स्कीम जम्मू कश्मीर सरकार और मरकज की मुआवनत से चलाई जा रही है और ये महकमा हार्टिकल्चर के ज़ेर निगरानी जारी है। स्कीम के हवाले से कई किसानों का कहना है कि बागात तैयार करने, पौधे फराहम करने और उन्हें लगाने के अमल में चंद एक प्राइवेट कंपनियों को शामिल किया गया है और इन्हीं कंपनियों के खिलाफ लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। पुलवामा से शौकत डार की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में जदीद बागबानी के तहत हाई डेंसिटी पौधों की काश्त के रुझान को गर्चे किसानों के लिए एक इनकलाबी कदम करार दिया गया है, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ अब इस रुझान के कई मनफी पहलू भी सामने आ रहे हैं, जबकि महकमे की गैर संजीदगी और कंपनियों की मनमानियों से जमींदारों को नुकसान झेलना पड़ते हैं। मुकामी किसानों का कहना है कि बड़ी तादाद में लोग मालूमात, तरबियत और सरकारी रहनुमाई के बगैर ही हाई डेंसिटी पौधे लगाने पर मजबूर हैं। किसान बराह रास्त निजी कंपनियों से राबिता करके पौधे खरीदते हैं, जिनकी न तो सरकारी सतह पर जांच होती है और न ही इन कंपनियों के दावों की तस्दीक की जाती है। नतीजतन पौधों की काश्त अक्सर बेतरतीब और गैर साइंसी अंदाज में की जाती है। मुतअद्दिद किसानों ने शिकायत की है कि निजी कंपनियां पौधों को जिस क्वालिटी का बताती हैं और बेहतर फसल हासिल करने का दावा करती है, वो दावे कई बार गलत साबित होते हैं। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से काश्तकारों ने शिकायत की है कि कई बार पौधे इस मखसूस किस्म के नहीं निकले जिनका वादा किया गया था, जबकि कई बागात में कई बरस गुजरने के बावजूद भी फल नहीं निकले। कई जमींदारों ने शिकायत की कि उनके खेतों में जो पौधे लगाए गए वो सूखे हुए थे और एक बरस की मेहनत के बाद भी इन पर न पत्ते निकले और न शगुफे, जबकि बाद में नए पौधे फराहम करने में 1 से 2 बरस तक का अरसा लगा, जो उनका वक्त और पैसा जाया हो गए। इस सूरत हाल बाइस किसानों को न सिर्फ माली नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उनकी मेहनत और उम्मीदें भी जाया हो गई। किसानों के मुताबिक रोज बरोज पौधों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है और पौधे फराहम करने वाली निजी कंपनियों की जानिब से कई इलाकों में 700 से 1000 रुपए में महज एक पौधा फरोख्त किया जाता है, जो गरीब किसानों के लिए खरीदना नामुमकिन होता है। इस तमाम सूरत हाल में किसानों का कहना है कि अगरचे एक तरफ हाई डेंसिटी बागबानी फरोग देने की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इसके लिए जरूरी निगरानी और ज़ाब्ते बंदी का फुकदान है। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत और बागबानी महकमा इस मामले में पूरी मुदाखलत करे और एक मजबूत निजाम कायम करे, जिसके तहत पौधों की अकसाम की तस्दीक, नर्सरियों के रजिस्ट्रेशन और निजी कंपनियों की निगरानी को यकीनी बनाया जा सके। साथ ही कीमतें भी मुनासिब हों ताकि किसानों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। किसानों ने उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत उनके मसाइल को संजीदगी से लेगी और ऐसे इकदाम करेगी जिनसे मुस्तकबिल में किसानों का एतमाद बहाल हो और बागबानी का ये शोबा पायदार बुनियादों पर तरक्की कर सके। इधर मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों का मानना है कि दरअसल महकमे के पास इस नौयत की बहुत कम शिकायत मौसूल होती है। महकमा बागबानी के जिलाई अफसर शाहरियाज ने शहरबीन को बताया कि महकमे के साथ चंद ही निजी कंपनियों का इंदराज हुआ है और जब भी कभी वो किसी जमींदार को पौधे फरोख्त करते हैं तो इससे कबल महकमा की टीम पौधों और बाग का जायजा लेती है और पूरा खरीद फरोख्त और सब्सिडी का काम मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है, जिसमें धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। उन्होंने मजीद बताया कि जो लोग अज़ खुद किसी गैर इंदराजशुदा कंपनी से पौधे खरीदते हैं और उनके साथ खुद ही लवाजमात तय करते हैं, इस पर महकमे का पूरा अमल दखल नहीं रह पाता है। ताहम उन्होंने बताया कि जब भी उनके पास कोई शिकायत मौसूल होती है तो वो इस ज़िम्न में फौरन कार्रवाई करते हैं। ये थे पुलवामा से शौकत डार। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी क्या है भाई, फिल्म शुरू होने वाली है, इंटरवल पे पहुंचोगे क्या? आ रहा हूँ मेरी जान, जरा लोग इस हीरो के लिए भी तो सीटी बजाएं। ओफो, मजाक सूझ रहा है? देर करोगे तो आधी स्टोरी मिस हो जाएगी ना। ठीक ऐसे ही श्रीमती जी, HIV जांच में देरी करोगी तो क्या हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा मिस नहीं होगी? समझदार पापा। फिल्म छोड़ो वहीं चलो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं।
ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकें। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। Issued in public interest by J&K AIDS Control Society. प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सिमटेक सीमेंट्स। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटेक सीमेंट। गटि मंज जन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम्स और अनऑथराइज्ड फाइनेंस कंपनीज कभी भी किसी को भी निशाना बना लेती हैं, लेकिन शुक्र है कि सचेत है। सचेत? पर ये क्या है? सचेत RBI, सेबी और IRDAI का ज्वाइंट पोर्टल है जहां आप किसी भी फाइनेंशियल कंपनी, NBFC, चिट फंड या स्कीम की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और अपने शहर में एक्टिव फ्रॉडुलेंट ऑपरेटर्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी पैसे इन्वेस्ट करने को बोले तो पहले मैं सचेत पर चेक कर सकती हूँ। बिल्कुल, बस पोर्टल पर जाएं, नाम सर्च करें और तुरंत पता लग जाता है कि कंपनी रजिस्टर्ड है या फेक। और तो और आप सस्पिशियस एक्टिविटी की ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सेफ, फ्यूचर सेट। विजिट sachet.rbi.org.in। Issued in public interest by Directorate of Information and Public Relations, Government of Jammu and Kashmir। सोचिए, पूरा साल मेहनत, सुबह से शाम तक खेतों में काम और एक आंधी, एक तेज बारिश साल भर की मेहनत बर्बाद कर दे। मैं अमन हूँ। ये डर मुझे भी सताता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, फसल बीमा कराओ, हिफाजती ढाल बनाओ। अगर नुकसान होता है तो बीमा कंपनी मेरा साथ देती है। इस सीजन गेहूं और सरसों की फसल पर सिर्फ 1.5% का प्रीमियम देना है, इसीलिए इंतजार मत कीजिए। नजदीकी बैंक, CSC या कृषि दफ्तर पर जाइए और 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना फसल बीमा जरूर करवाइए। ज्यादा जानकारी के लिए 1447 पर कॉल कीजिए। अपनी फसल का फ्यूचर सुरक्षित बनाइए। फसल बीमा कराओ, हिफाजती ढाल बनाओ। ये संदेश डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। शहरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर मामला काफी गर्मा चुका है, जबकि इस पर सियासी तौर पर भी बयानबाजी तेज हो चुकी है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता एक साल से नौजवान रिजर्वेशन ज़वाबित में की गई तब्दीली को वापस लेने और जनरल कैटेगरी के तबके के लिए आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन देने को लेकर जदोजहद कर रहे हैं। गुज़श्ता बरस वज़ीर आला के घर के बाहर नौजवानों की तरफ से एहतजाज किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने एक सब कमेटी तश्कील दी और गुज़श्ता इस कमेटी की सिफारिशात को मंजूर करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंजूरी के लिए भेज दिया गया और हुकूमत को अभी तक LG की मंजूरी का इंतजार है। इस दौरान नौजवानों ने गुज़श्ता रोज मामले को लेकर एक बार फिर एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसे मेंबर पार्लियामेंट आगा सिद्दुल्लाह मेहदी, PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती, वहीदुर रहमान परा, जुनैद अज़मत्तू समेत दीगर लीडरान ने सपोर्ट किया। अलबत्ता बताया जाता है कि इंतजामिया की तरफ से एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि बाज़ लीडरान ने इल्जाम लगाया कि उन्हें घरों से बाहर आने और एहतजाज में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने नौजवानों के पुरअमन एहतजाज को रोकने को जमहूरी उसूलों के खिलाफ करार दिया है। उनका कहना है कि जमहूरियत में एहतजाज हर शहरी का हक है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए। तनवीर सादिक ने मजीद कहा कि हुकूमत ने वादे के मुताबिक अपनी सिफारिशात LG को पहले ही भेज दी हैं और हुकूमत को उनकी मंजूरी का इंतजार है। इधर पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में कहा कि जम्मू कश्मीर के बासलाहियत तलबा और नौकरी के उम्मीदवारों के मुस्तकबिल को ये पॉलिसी बुरी तरह मुतासिर कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी हमदर्दी हमेशा नौजवानों के साथ रही है और उनके मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अवलीन तरजीह है। हकीम यासीन ने जोर देकर कहा कि इंसाफ, मसावत और शफाफियत के लिए ओपन मेरिट को बहाल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का मसला एक संगीन समाजी तशवीश है जिसे फौरी तौर पर हल करने की जरूरत है। अगर इस मसले को फौरी तौर पर हल नहीं किया जाता तो हमारे तालीम याफ्ता नौजवानों के मुस्तकबिल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। हकीम यासीन ने खबरदार किया कि कुछ अनासिर रिजर्वेशन के मसले पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उन्होंने अखलाक के तौर पर गलत करार दिया।
ये सियासी नहीं बल्कि एक समाजी मसला है और इसे जिम्मेदारी के साथ हल करने की जरूरत है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा किस दर्जा अहमियत की हामिल है, ये गालिबन मोहताज बयान नहीं। कौमी शाहरा को वसअत देने और इससे बदलते वक्त की जरूरियात से हम आहंग करने के लिए गुज़श्ता कई बरस से काम शदोमत से जारी है। शाहरा पर कई टनल तामीर किए जा चुके हैं जिन्होंने सफर की मुद्दत को कम करने में अपना अहम किरदार अदा किया है, अगरचे अभी शाहरा के 4 लेनिंग का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। इस दौरान रवा साल में नासाजगार मौसमी सूरत-हाल के नतीजे में कौमी शाहरा को कई मकामात पर खस्तगी का सामना रहा, लेकिन तवक्को की जा सकती कि आने वाले साल में शाहरा की मजमूई बेहतरी यकीनी बनाने के काम में गैर मामूली सूरत आएगी। इसी तनाजुर में मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट। हालिया बरसों के दौरान साल 2025 जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की तबाही और नुकसानात का सबसे खराब साल साबित हुआ और इस साल अप्रैल, जुलाई और अगस्त के महीने में शदीद बारिशों, बादलों के फटने और सैलाबी रेलों के नतीजे में जहां जिला रामबन में कई अफराद की मौत वाक़ा हो गई थी और अवामी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा था, वहीं साल 2025 के बारिशों के कहर ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को भी शदीद नुकसान से दो चार किया था। ताहम तवील मुश्किलात के बाद अब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है और पिछले करीब 2 महीने से शाहरा पर 2 तरफा ट्रैफिक चल रहा है। साल 2025 में मौसमी मार झेलने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा उधमपुर और बारहाल के दरमियान कम अज कम 25 रोज तक बंद रही थी, जबकि माल बरदार गाड़ियों के लिए इससे भी जायद वक्त तक शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं थी। अप्रैल और अगस्त में होने वाली शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों के बाईस उधमपुर, रामबन और बारहाल सेक्टर में कौमी शाहरा को शदीद नुकसान पहुंचा था और चनानी और उधमपुर के दरमियान कई मुकामात पर सड़क का ढांचा और पुल मुनहदिम हो गए थे, जबकि पस्सियों और पत्थरों के गिरने की वजह से शाहरा का ट्रैफिक कई बार मुतासिर रहा। अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुई तूफानी बारिशों के बाद कौमी शाहरा हर किस्म के ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए तकरीबन 20 दिन तक मुकम्मल तौर पर बंद रही थी और इस दौरान मुसाफिर गाड़ियों के साथ साथ सेब से लदे सैकड़ों ट्रक भी 3 हफ्तों तक दरमांदा रहे और सयाहत के साथ साथ मईशत भी असरअंदाज हो गई। अप्रैल में हुई तबाहकुन बारिशों और सैलाबी रेलों ने रामबन में 3 अफराद की जान ली थी और रामबन और धर्मकुंड में दर्जनों रिहायशी मकानात, दुकानें और गाड़ियां तबाह हो गई थी और जराई जमीन को भी शदीद नुकसान पहुंचा था, जबकि जुलाई के महीने में मशहूर सयाहती मकाम सनासर में सैलाबी रेलों की जद में आकर जम्मू के 2 ज़ेरी तरबियत टीचर जाम बहक हो गए थे। अगस्त में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने उधमपुर और रामबन जिला के सेक्टर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ साथ उधमपुर और रामबन के अजला के कई इलाकों में तबाही मचाई थी और बली नाला, समरूली, देवल, राजगढ़ और जिला रामबन के कई इलाकों में बादल फटने और सैलाबी रेलों के बारिश कई मकानात को नुकसान पहुंचा था और कई अफराद जख्म बक हुए थे। 24 अगस्त से 2 सितंबर तक शाहरा पर पेश आने वाली इस सूरत हाल में 5 सितंबर से बेहतरी आना शुरू हुई थी और सड़क की जुज़वी बेहतरी के बाद छोटी मुसाफिर गाड़ियों को महदूद अवकात में एक तरफा ट्रैफिक में बहाल किया गया था, जबकि 15 सितंबर से माल और ईंधन बरदार गाड़ियों को भी महदूद अवकात की नकलो हरकत के साथ एक तरफा तौर बहाल किया गया था। और इस दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से शाहरा के तबाह हुए मुकामात पर मुसलसल मरम्मती कामों और हिफाजती इकदामात के बाद अब उधमपुर, रामबन और बारहाल सेक्टर में शाहरा पिछले 2 माह से 2 तरफा ट्रैफिक के काबिल है, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों मुसाफिरों, सयाहों और ड्राइवरों को बड़ी हद तक राहत मिली हुई है। शाहरा के हवाले से बात करने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर रामबन शुभम यादव ने आज